everyone, welcome back to Equipoise classes. Welcome to Mission CUET 2024, day 5 of week 1, which is week of national income. And आज आखिरी दिन है जब हम 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करेंगे एंड इन टोटल आपके इन 5 दिनों में हमने नेशनल इनकम के रोज 4 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं so go and watch previous 4 videos, and then definitely if you're watching me for the first time, you need my intro, guys. So get to know me. Hi, I'm Surbhi Gupta, and I've done my masters and my graduation both in economics, and I have 5+ years of experience in teaching, and I am a CUET specialist, guys, because 2022 was the first year when CUET was introduced. Before that, only your board marks used to get included in the university's entrance criteria or calculation, whatever. But since 2022, they've introduced common university entrance test for every student to get into a good university, and every year a lot many universities are being added because अब आपको कहीं भी जाना है CUET score valid है. And based on 22 जो पहला साल था, analyzing the actual papers of that year, I created mocks which students took from me, and I worked with some prestigious institutes in which are specialized in CUET. I've taught 200+ students only in single batches, giving CUET. I've given crash course, CUET crash course to a lot of students for year 23, and for which I created mocks which actually resembled the actual papers by 80 to 90%, guys, which means that you can believe me when it comes to CUET. And to gather your trust further, you can see my scorecard, because I myself also appeared for 2023 exam, and in the domain subject economics, you can see I scored 100 percentile, guys, 200 out of 200 marks, which boiled it down to 100 percentile. That means you can trust me, everyone. And अगर ये सब काफ़ी नहीं है तो हम क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, एवरीवन, सो आई एम लॉन्चिंग CUET sprint batch, guys. So to get to know this, the dates and enrollment criteria and everything, you can write interested in the comment box, and what will happen there, that I will cover the entire syllabus of CUET. I will make you solve PYQs all by myself. Mocks होंगे आपको 5 mocks मिलेंगे with answers, explanation and everything, with my personal one-on-one guidance on that. And इसके साथ साथ आपको practice questions मिलेंगे, current affairs कौन से आ सकते हैं CUET में, वो मिलेगा. So you will get almost everything, guys. So you can comment interested if you are interested in joining the sprint batch. बाकी डिटेल्स बाद में कंटिन्यू करते हैं वीडियो को. सिलेबस ये रहा, cuet.samar.ac.in से आप सिलेबस पे जा सकते हैं. मैंने सिर्फ यूनिट 3 का लिया है बिकॉज हमारा नेशनल इनकम वीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, so let's come to our first question, guys. If national income is 9500 crore and domestic income is 98, then which of the following option is correct? NFIA पे क्वेश्चन है. NFI क्या होता है? NFI होता है, everyone, net factor income to abroad. So basically it is from abroad. We will do हमें कितनी net factor income आई है, which boils down to factor income from abroad minus factor income to abroad. Okay, this is the criteria, everyone, net factor income का. ठीक है. So अब domestic और national में क्या difference होता है, everyone? So national income में is equal to domestic income plus NFI है. इसको अब ओपन करते हैं. नेशनल इनकम कितनी दी है आपको, यहाँ पे कर लेते हैं. नेशनल इनकम आपको दिया 9500 CR. दिस इज योर NI इज इक्वल टू DI विच इज 9800 करोड़ प्लस NFI है. NFI इज फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस फैक्टर इनकम टू. ठीक है, दैट्स ट्रू. अब इसको ले जाओ, माइनस कर लो, तो आपको पता लगेगा कि ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा. NFI है is equal to so not even NFI है तो आपका जो होगा that will be -300. लेकिन अगर आप ये पूरा टर्मिनोलॉजी इधर ले आओगे, so factor income to abroad minus factor income from abroad
क्योंकि ये माइनस में था ना फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इधर आके प्लस हो जाएगा राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 9800 माइनस 9500 एवरीवन। सो बेसिकली टू अब्रॉड ज्यादा गई है, फ्रॉम अब्रॉड फैक्टर इनकम कम आई है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो डिफरेंस है गाइस वो है 300 का। ठीक है, अब यहाँ देखो 1200,000 200 का गैप है, छोड़ दो। अब आ जाओ 800 500 300 का गैप है, दोनों में से एक सही है, लेकिन ऑब्वियसली फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो बड़ी है और फ्रॉम अब्रॉड छोटी है, विच मेक्स इट 300। ठीक है, सो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बड़ा है, टू अब्रॉड 800 है और फ्रॉम अब्रॉड 500 है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन है रिप्ले कर लो वीडियो, दोबारा देख लो इतना पोर्शन, फिर भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लिख देना कंफ्यूज्ड इन क्वेश्चन 1 एंड आई विल गेट बैक टू यू। ओके, देन लेट्स सॉल्व क्वेश्चन 2 गाइस। देखो ऐसे क्वेश्चन 6 मार्कर्स में बहुत सॉल्व करे, बोर्ड देते हुए आता है, लेकिन सीयूईटी में भी आता है। ओके, जीडीपी एट एमपी करना है, जीडीपी एट एमपी एवरीवन, जीडीपी एट एमपी एक्सपेंडिचर मेथड से आता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में इसका फॉर्मूला होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एन माइनस एक्स। सी क्या होता है? सी होता है आपका नथिंग बट प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज सी। फिर आपका आई जो है इन्वेस्टमेंट हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया आपका आई एवरीवन। जी हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हो गया जी। और एन माइनस एक्स यानी नेट एक्सपोर्ट्स हो गया ये एन माइनस एक्स। बस हमें इतना ही चाहिए, जीडीपी एमपी दे देता है हमें ये, यानी ये जो बाकी की चीजें हैं नेट एंड डायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड एवरीवन। ये 4 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है, इन्हें ऐड कर देते हैं। जीडीपी एट एमपी कितना आ गया आपके पास, कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन है 350, इन्वेस्टमेंट है 90, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 100 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स कितना है एवरीवन 10। ठीक है, सो व्हाट डज इट मेक, कैलकुलेशन कर लो, 350 प्लस 90 440 540 550, ऑप्शंस देख लो 550, डी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। यू कैन सी एनसीईआरटी में जीडीपी एमपी का फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड से ये होता है, इसका मतलब आपको इसी वजह से जो बाकी 3 चीजें थी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। ओके, then match the column question everyone। let's see income generated by own। तो पहले ना हम 1 2 3 4 देखते हैं, किसी में आ रहा है जो सीधा एलिमिनेट हो जाए, नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर, इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एवरीवन, यानी 4 A4। तो A4 2 ऑप्शन दिख रहा है, तो पहले तो ये एलिमिनेट कर दो, 50-50 पे आ जाओ। अब B या तो 2 है या 1 है, आंसर आ जाएगा। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस पे जो नेशनल इनकम होती है उसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं गाइस। ठीक है, तो बी हो गया 1, बी अगर 1 हो गया आपका, बी 1 हो गया, ए 4 है, बी 1 है। सी कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का कंपोनेंट क्या हो जाता है आपका, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ पार्ट कॉर्पोरेट टैक्स जाता है। ठीक है, 2 हो गया। एंड चेंज इन closing stock minus opening stock, change in stock होता है everybody, that means option C is the correct answer। okay, then let's come to our final question। if a farmer sells, farmer है, ठीक है, farmer ने sell की wheat to miller, कितने में करी, 500 रुपीज में। ठीक है, यानी फार्मर की वैल्यू एडेड भी 500 रुपीज हो गई, 500 की वैल्यू एड की, 500 में इसने खरीद ली। अब मिलर ने कहा बेची आगे, मिलर सेल्स फ्लोर टू बेकर, मिलर ने बेकर को बेचा, कितने में बेचा, टोटल बेचा, मिलर ने जो बेचा वो 700 में बेचा आटा। ठीक है, मिलर ने कितनी वैल्यू ऐड की, मिलर को वीट जो है वो 500 में मिली थी, उसने 700 में बेच दिया, इसलिए उसकी अपनी वैल्यू एडेड हो गई 200 मिलर की। ठीक है, अब बेकर ने क्या किया, बेकर ने कंज्यूमर को ब्रेड दी, सॉरी कंज्यूमर है, ब्रेड दी, टोटल ब्रेड कितने की दी इसने, ब्रेड दी 1000 की, तो इसके पास आटा आया 700 में, ब्रेड बेची 1000 की, इसका मतलब 700 की कॉस्ट देनी पड़ी थी, 1000 माइनस 700, वैल्यू एडिशन कितनी की है बेकर ने खुद अपने दम पे, 300 रुपीज।
ठीक है। देन टोटल वैल्यू एडेड बाय मिलर एंड बेकर, मिलर ने वैल्यू कितनी ऐड की है और बेकर ने कितनी ऐड की है। मिलर ने 200 ऐड किया, बेकर ने 300 ऐड किया, टोटल कर दो 500 वैल्यू एडिशन दोनों ने मिलकर की है। अगर बोलता फार्मर ने भी कितनी वैल्यू ऐड किया, फार्मर की 500 ही थी जितने में फिर बेचा टोटल, तो 1000 हुआ। ठीक है, 1000 ऑप्शन भी नहीं है। दे ओनली आस्क्ड यू मिलर और बेकर। मिलर ने 200 की वैल्यू ऐड की है एज यू सीन, एंड बेकर ने 300। ओके, एंड यू कैन सी एनसीईआरटी में ऐसा एग्जाम्पल भी है, बेकर, मिलर, फार्मर, एंड एक प्रॉपर एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि किसने कितनी वैल्यू ऐड की है। उधर से ही इस टाइप का सीयूईटी का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, you can take a pause here and read what is there in the NCERT. I would urge you to go and download PDF NCERT की PDF डाउनलोड कर लो वेबसाइट से, क्योंकि एक डिफरेंस और है गाइस कि NCERT जो आप मार्केट से लेते हो ना, वो अपडेटेड नहीं होती, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स अपडेटेड नहीं होते, नॉट अपडेटेड। सो आई वुड प्रेफर कि आप लोग सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो, PDF डाउनलोड कर लो इस चैप्टर की, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, क्योंकि वो अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, उसमें कोई फैक्ट एंड फिगर होगा, कोई डेटा होगा, वो अपडेटेड होगा। प्रिंटेड बुक्स में ऑलरेडी जो आप पूरी बुक ले आओगे उसमें अपडेटेड नहीं। ठीक है, टेक्स टाइम। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस वीडियो, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स अगेन एंड कैलकुलेट मेथड्स ऑफ कैलकुलेट। आपने देखा वैल्यू एडेड मेथड पे क्वेश्चन था, ये वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन था गाइस। प्रोडक्ट मेथड, कैलकुलेशन क्वेश्चन बता रही हूँ, और वैल्यू एडेड मेथड था ये। ठीक है, आपने यहाँ पे पिछला देखा एक्सपेंडिचर मेथड का कैलकुलेशन था, तो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम्स आर क्रिटिकल। ठीक है, so these are the important topics, and with this we've come to an end of week 1 which was the week of national income. So week of national income आज खत्म होता है। हमने अभी तक टोटल मिला के 5 दिन में 20 क्वेश्चंस कर लिए गाइस, एंड आई वोंट से दीज 20 क्वेश्चंस आर इनफ, बहुत सारे क्वेश्चन और है अभी, लेकिन ये क्वेश्चंस इतने के लिए काफी है कि आपने हर टाइप के क्वेश्चन एक एक बार सॉल्व कर लिए, तो इस टाइप के कोई और क्वेश्चन आएंगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व, अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट पता है। आई होप इन्हीं वीडियोस में आपको ये भी सीखने को मिला होगा कि एनसीईआरटी कैसे रीड करते हैं लाइन बाय लाइन, क्योंकि उससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो जाते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज करते हैं, और वो जो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हमने बीच में सीखी सही आंसर पे कैसे आते हैं गाइस, कि कंफ्यूजन अगर हो तो कैसे अवॉइड करते हैं। ऑल दीज थिंग्स I hope turn out to be beneficial for you. Week 1 gets over, week 2 होगा determination of income and employment का week. So हम लोग अब next Monday से, आज Friday है guys, so Monday से, upcoming Monday से we will start with those videos, the 5 days of determination of income and employment guys. So I hope this is beneficial for you. I hope you're liking it, and अगर ये 20 क्वेश्चन इनफ नहीं है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ज्वाइन माय CUET स्प्रिंट बैच गाइस, जस्ट कमेंट इंटरेस्टेड, और मैं अपना ईमेल आईडी दे देती हूँ, तो आप उसमें मेल कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टू नो द डिटेल्स। माय ईमेल आईडी इज surbhi.gupta 0705@gmail.com गाइस। ओके, दिस इज माई ईमेल आईडी। एक्वापॉइस क्लासेस का भी मैं डाल सकती हूँ, बट इस पे मैं ज्यादा जल्दी रिवर्ट करूंगी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी on this mail ID, or you can write interested in the comment section if you need to practice even more questions, and if you want to study from me anything like boards के लिए पढ़ना है, CUET के लिए पढ़ना है, कुछ और भी पढ़ना है मुझसे economics से related, feel free to contact me and approach me. And also guys, with this, keep smiling, stay happy, and I will see you tomorrow guys with eco fair session. इस पूरे वीक में, इन 5 दिनों में न्यूज़पेपर्स में क्या क्या करंट अफेयर ऐसा आया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है CUET में, या इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट लिंक हो रहा है, वो मैं कल लेकर आऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू टुमारो गाइस। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज एंड मेक अदर सब्सक्राइब एज वेल। ओके, बाय बाय।